Hello student, in last lecture we are discussed regarding the motion. Okay? We are defined the motion and we are discussed about the two physical quantity, distance and displacement, which is used to describe the motion. So now in today's lecture we will move ahead and we will discuss some more physical quantity which is also useful to describe the motion of an object or motion of a body. Okay? So let us see if any object or body is in motion, okay, and we are taking that, okay, distance and time. Okay? Distance we are taking in meter, time we are taking in second. Okay? So at 0 second travel is 0. At 5 second travel is 10. At 10 second travel is 20. At 15 second distance travel is 30. At 20 second distance travel is 40. Okay? One case we are taking. Another case we are taking is distance travel in meter and time in second. So at 0 second distance travel is 0. At 5 second distance travel is 10 meter. At 10 second distance travel is 17 meter. Okay? At 15 second distance travel is 24 meter. At 20 second distance travel is 38 meter and so on. Okay? So here what is the difference in these two cases? Okay? So here in this case we are seeing that so time interval is remain same, equal time interval we are taking 5 second. Here also we are taking equal time interval 5 second. Here distance we are taking 0, 10, 20. Matlab distance travel is also remain same in equal interval of time. And here we are observing, so we are getting distance travel is different, okay, in same time interval. Okay, so these are the two possibility when the body is in a motion. So according to that we can divide the motion into two types. One is uniform motion. Okay, one is uniform motion. Okay, so uniform motion is if bodies travel equal distance in equal interval of time, then we can say that it is a uniform motion. Okay, so we can say that when body travel equal distance in equal interval of time, okay, then okay, body is in motion. We can say that if the bodies travel equal distance in equal amount of time, okay, then we can say that the body is in uniform motion. The second one we can define is non-uniform motion. Okay, non-uniform motion. Okay, so just opposite of this, when body travel unequal distance in equal interval of time, then body is in non-uniform
then body is in non-uniform motion. Okay, so difference is that here it travel equal distance, okay, and here it travel unequal distance in equal interval of time. Then we can say that, okay, here body is in uniform motion and here we can say that body is non-uniform motion. Okay. So generally in our day-to-day life we are observing is a non-uniform motion. Okay. In particularly some places only we can observe the uniform motion. For example, Earth is revolving around the Sun, so it is uniform motion because it travel equal distance in equal interval of time. Okay. The clock hands, we can say it is uniform motion because it travel equal distance in equal interval of time. Generally in our routine life we are observing is a non-uniform motion. Okay. So this is regarding the type of motion. Now we have to see more physical quantity which is used to describe the motion of a body. Okay. So in last lectures we are discussed about the distance and displacement. ठीक है, हमने distance और displacement के बारे में discuss किया था. So distance is what? The actual path length covered by the body. Body ने actual कितना path cover किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? Distance. And displacement is what? The shortest distance between initial and final position of a body is nothing but a displacement. So describe the motion of body, we require both the things. Distance also we need, displacement also we need. Because distance just gives us the path length, but displacement gives us the exact initial and final position and gives us a sense of direction. Okay. Now why we required more physical quantity to describe the motion? Okay, let us, we will see with the example. Okay, same type of example we are considering. Initially we are at the movie, okay, and we are going at Ahmedabad. Okay. Now first we are going on the direct way through Halwad. So here we can say the distance traveled by us is 220 kilometer. Second way we are move from Limbadi. So we can say that we are traveling is 250 kilometer. Okay. Let's third way we are descending, we are moved through Rajkot. So we can say that we are traveling is 300 kilometer. In all case distance travel is different. Okay. Displacement will be remain same. Okay. But here we are taking time to travel this distance is different. हो सकता है कि कोई पर्सन मोरबी से ट्रैवल करके अहमदाबाद 3 घंटे में पहुंच रहा है, दूसरा पर्सन है वो मोरबी से अहमदाबाद ट्रैवल करने के लिए 4 घंटे ले रहे हैं, कोई एक पर्सन है तो मोरबी से ट्रैवल करते हैं हलवद जाके हलवद 1 घंटे रेस्ट करते हैं, रेस्ट करके फिर ट्रैवल करते हैं और 5 घंटे में वे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. So if we are telling about only distance, so distance will be remain same. If we are telling about displacement, displacement is also remain same. But in all the cases time taken to travel equal distance is different. टाइम सभी केस में अलग अलग है. ठीक है. तो जब टाइम अलग अलग है और डिस्टेंस ट्रैवल है वो सेम है, ऐसी बात आती है, ऐसे हमें मेजर करना है, ऐसे हमें बोलना है, तो वी आर यूजिंग वन मोर फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज ए स्पीड, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और यूज भी करते हैं. This is what? Speed. We can say that it is a speed. So what is the speed? So it is
defined as distance travel upon time. Distance travel upon time, or we can say that distance travel in unit time. Okay, so it is defined as speed we are getting v is equal to distance upon time, s upon t we are getting. Okay, so what is the SI unit of a speed? So my dear students, remember these things. So many students are mugging the unit in physics, but never mugging the unit in physics. Always derive the unit in physics. It is very easy. Here, if you want to write the SI unit of speed, so how we can write the SI unit of speed? So we know that SI unit of distance is meter and SI unit of time is second. So we can write it is meter per second. Okay, so easily we can write the unit of any physical quantity. So here we are defining one more physical quantity which is known as a speed. So it is defined as a distance travel, okay, upon a time, or distance travel in unit time. Okay, अब प्रॉब्लम्स ऐसे आता है इसमें स्पीड के अंदर कि ऑलवेज इन ऑल द केस, फॉर ऑल केस स्पीड आर नॉट कांस्टेंट. ऑलवेज स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहां से अगर हम मोरबी से हलवद तक होके अहमदाबाद जा रहे हैं तो मोरबी से हलवद जा रहे हैं, हमारी स्पीड अलग होगी, हलवद से आगे जाएंगे स्पीड अलग होगी. मतलब ऑल द टाइम स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, स्पीड वेरी होती है, स्पीड चेंज होती रहती है. ठीक है, तो जब जब स्पीड चेंज होती रहती है तब जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो वी आर टेलिंग इट्स एवरेज स्पीड. What we are called is average speed we are telling. Okay, so average speed is what? How we are getting the average speed? Is total distance travel upon total time taken. So generally we are calling it speed in our daily routine, but this is not a speed, this is average speed. If anyone can ask you, okay, you are going from Morbi to Rajkot, so at what speed are you traveling? So what you are telling that 60 km per hour, because you are taking 1 hour to travel the 60 km. That's why you are telling travel with a speed of 60 km per hour. But actually throughout the journey your speed is not 60 km. Sometimes your speed is 40 km per hour, sometimes your speed is 60 km per hour, sometimes your speed is 100 km per hour. Okay, or might be in between the traveling distance for half an hour you are taking the rest, your speed is 0. So at that time what speed we are calculating? It's an average speed. Okay, so how we should get the average speed? Average speed is defined as a total distance travel upon total time taken. कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो टोटल डिस्टेंस को हम ध्यान में लेंगे, और हमने टोटल टाइम कितना लिया है वो टोटल टाइम को हमको ध्यान में लेना है, और उससे हम जो स्पीड निकालेंगे वो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं. तो जनरली जो स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड नहीं है पर एवरेज स्पीड है. एक्चुअली स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम होता है. ठीक है, और एक चीज और स्पीड को लेके हमारे ध्यान में आती है, ठीक है, कि हम जब कार चलाते हैं, ठीक है, और कार चलाते वक्त अगर किसी का आपको कॉल आता है और आपको बोले कि यू आर ट्रैवल एट व्हाट स्पीड, तो आप क्या करेंगे? तुरंत स्पीडोमीटर में देखेंगे और बताएंगे ट्रैवल एट 80 किलोमीटर पर आवर. फिर और आधे घंटे के बाद और किसी का कॉल आता है और आपको पूछा जाता है कि यू आर ट्रैवलिंग एट व्हाट स्पीड, आप तुरंत स्पीडोमीटर में देखेंगे और बोलेंगे कि आई ट्रैवल एट 100 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज व्हाट? So this speed
is the speed at a moment, at time. So this speed is known as a instantaneous speed. How we are identified? Instantaneous speed. Okay? At a instant, at a moment जो speed होता है इसको हम क्या बोलते हैं? Instantaneous speed. Instantaneous speed. Okay? The speed at a time. At a time, जो टाइम है, एग्जिट टाइम पे जो स्पीड है वो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ठीक है? तो स्पीड का हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. सिंपल स्पीड वी आर डिफाइनिंग, सो दिस स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, बट ऑलवेज okay, the speed is not remain same, speed is unequal. Okay, so when we have to describe all situation, so we are finding out the average speed, total time distance travel upon total time taken, or at a moment if you want to measure the speed. Okay, so this speed is known as the instantaneous speed. This is speed at a time. Okay, जो टाइम है वो टाइम पे जो स्पीड हमें दिखाई देती है वो किससे हम मेजर कर सकते हैं? स्पीडोमीटर. इट गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. जो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर फिट किया होता है वो हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखा रहा है. ठीक है, और दूसरा गाड़ी में एक मीटर होता है, किसको हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. इट गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल. टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है, वो हमें ओडोमीटर से देखने को मिलता है. और कोई भी इंस्टेंट पे जो हम स्पीड देख रहे हैं वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, सो वी आर यूजिंग वन मोर फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब द मोशन इज ए स्पीड. जो स्पीड से हमें पता चलता है कि वी आर ट्रैवलिंग व्हाट डिस्टेंस एंड विद इट व्हाट टाइम limit. Okay, just if we are telling that okay, I am going with a speed of 70 kilometers per hour, so what is its meaning? I travel a 70 kilometer and time taken to travel this 70 kilometer is 1 hour. Okay, so speed gives us a more idea for the description of a motion. Okay, so here we are discussing the speed. So speed is relating with two physical quantity, distance and time. Similarly, here we are discuss about the displacement also. So same like a distance travel, time taken is different. So for the displacement also time taken is different. It means displacement is also changing with respect to time. So जो displacement में change होता है with respect to time, we are recognize it, we are defining it with one more physical quantity, okay, and which is known as a velocity. Okay, हम उसको क्या बोलेंगे? velocity. तो हम डिफाइन करते हैं velocity को. velocity. Okay, so it is defined as rate of change of displacement. It is defined as a rate of change of displacement. Okay, also we can say that okay, it is a speed in definite direction. वो एक स्पीड ही है, वो स्पीड किसके साथ है? डायरेक्शन के. कौन सी डायरेक्शन में हम स्पीड वो स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं. स्पीड के साथ साथ जब डायरेक्शन बताया जाता है
तो वेलोसिटी बन जाती है. और आइदर वी कैन से दैट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Okay, so we can define the velocity v is equal to displacement upon time. It can define as a displacement upon time, d by t. What is the SI unit of velocity? Now you can say that very easily. How we can define the SI unit? So here, what is the unit of displacement? Meter, and unit of time is second. So SI unit of velocity is meter per second. Okay. So once again, here we can categorize the speed and velocity in two types. We are discuss about the scalar quantity and vector quantity. So our speed is which type of physical quantity? So speed is a scalar physical quantity. Okay. And velocity is vector quantity, because in speed we don't have a need of direction. हमें direction बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है. और जब वेलोसिटी की बात आती है, वी रिक्वायर्ड द डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे आएगा. सो वी आर डिफाइंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और एक चीज आप याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए फिजिक्स में आगे जाके आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, कि हियर ये जो डिस्टेंस है, टाइम है, वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. वो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है और वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. और यहां पे हमने स्पीड डिफाइन किया, हमने वेलोसिटी डिफाइन किया. तो स्पीड और वेलोसिटी हमने दो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया है. सो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, कि जो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन से हम जो फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. अब ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, वो वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है. तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, डिराइव करते हैं, अगर वो दो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, तो नई फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होगी, स्केलर होगी. और अगर जो हम फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं, उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो नई जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी. तो यहाँ पे स्पीड में क्या था, स्पीड इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पे डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है. तो स्पीड कैसे क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा. और यहाँ पे जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. और टाइम है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो कैसे फिजिकल क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी. तो आगे जाके कहीं भी आप फिजिक्स में ये चीज को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ओके, कि हियर यू आर गेटिंग इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. और दूसरी एक बात है, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में हम थ्री वे से उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एक तो या तो इट्स मैग्नीट्यूड इस चेंज, तो भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है. मतलब अगर वेलोसिटी है वो v1 है, v2 है, v3 है, ऐसे चेंज होता है, वी कैन से दैट इट इज चेंजिंग, वो चेंज हो रही है. या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इट्स चेंज बाय चेंज इन डायरेक्शन. मतलब उनका मैग्नेटिज्म कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती तो भी हम क्या बोलते हैं कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. मतलब इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार एंड इफ the velocity of car is continuously changing, its speed is continuously changing, so we can say that velocity of car is changing if car is traveling in a straight line, okay. But suppose we are considering that we are driving a car on the straight line
and we are keep speed is constant, मतलब there is no change in velocity, okay, but if we are taking left turn or right turn with the same speed, same then we can say that velocity is changed, because here direction is changed. Magnitude will be remain constant, but direction is changed. Then also we can say that there is change in velocity, because direction change होगी तो क्या होगा, displacement बदल जाएगा. ठीक है, displacement बदल जाएगा तो velocity बदल जाएगी. या तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, change in magnitude and direction. चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में चेंज आएगा. मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो भी क्या है कि उसमें चेंज हो सकता है. ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई है. ठीक है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू, सो वेलोसिटी बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट की तरह वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकती है. ठीक है, बट स्पीड है वो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. स्पीड कभी जीरो नहीं होगी और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस कभी नहीं तो जीरो होता है और नहीं तो कभी डिस्टेंस नेगेटिव होता है. दैट्स व्हाई स्पीड ऑलवेज वी आर गेटिंग इज पॉजिटिव वैल्यू, बट वेलोसिटी वी शुड गेट ए पॉजिटिव, नेगेटिव और zero value. So I think so now you understand the difference between speed and velocity. Okay, so now let's revise this difference of speed and velocity. So what is the difference in speed and velocity? Speed and velocity. Okay, so first difference, we define the speed is defined as distance travel in unit time, or velocity is defined as rate of change of displacement. Okay, so here we are getting speed is equal to distance upon time, or here we can say that velocity is equal to displacement upon time. Okay, value of speed is always पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव. और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. स्पीड is a scalar physical quantity and velocity is a vector physical quantity. Okay, so this is the difference in between speed and velocity. Okay, ऐसे आगे जाके हम speed और velocity define कर सकते हैं. ठीक है, let us we will see some numericals based on this. So you should get the idea about how we should calculate, okay, speed and velocity. Okay, so we are taking the example from your textbook. So very first example is 8.1. Okay, very first example is 8.1. Now physics के अंदर जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में डर होता है कि न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है. तो एक्चुअली न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक स्टेप सिस्टम है. इफ यू आर फॉलो दिस स्टेप सिस्टम्स, सो यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल. ठीक है,
तो आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इनको डिटेल में समझते जाएंगे। अभी मैं आपको सिंपली स्टेप बता देता हूँ, वो स्टेप को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सबसे पहला स्टेप आता है कि हाउ टू रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड राइट डाउन द गिवन डेटा। जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है उसका जो स्टेटमेंट है उनको प्रॉपरली रीड करो और उसमें जितनी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज दिया हुआ है, जो जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को आप लिख लो। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप है कि हाउ टू चेक ऑल द डेटा इज गिवन इन सेम यूनिट सिस्टम और नॉट। अगर दिया हुआ जो डेटा है वो सेम यूनिट सिस्टम पे नहीं है, अलग अलग यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, सो योर सेकंड स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू सेम यूनिट सिस्टम। मतलब अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो आपको पहले उनको कन्वर्ट करके सारे फिजिकल क्वांटिटी उनको एक यूनिट सिस्टम में लाना पड़ेगा। दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज नाउ राइट द फॉर्मूला for which quantity you have to find। जो फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला लिखो। तो जैसे आप उनकी फॉर्मूला लिखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते तो आपको पता चलेगा कि दिस फॉर्मूला वन फिजिकल क्वांटिटी इज अननोन एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी डेटा इज गिवन इनटू द डेटा। सो जस्ट पुट द वैल्यू गिवन इन डेटा एंड सॉल्व इट। You get the unknown physical quantity, so your problem is solved. So simply you can solve the problem. So these are the simple steps to solve any physics numerical. Okay, we will go in detail after completion of this chapter. Okay, so let's see some example. So first example is, okay, an object travels 16 meter in 4 seconds. An object travels 16 meter in 4 seconds. Then another 16 meter in another 16 meter in 2 seconds. Another 16 meter in 2 seconds. So what is the average speed of a object? What is the average speed of a object? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस। तो क्या है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसने ट्रैवल कितना किया डिस्टेंस, 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड टाइम टेकन इज 4 सेकंड। उसने टाइम कितना लिया, 4 सेकंड लिया। ठीक है, नाउ वंस अगेन वही ऑब्जेक्ट है उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल इज 16 मीटर। वंस अगेन उसने 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस बार जो टाइम लिया वो क्या लिया, 2 सेकंड टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो हम इनको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल D1, इनको बोलेंगे T1, इनको बोलेंगे D2, इनको बोलेंगे T2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एवरेज स्पीड is equal to total distance travel upon total time taken। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अपन टोटल टाइम कितना लिया है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, शुरू में उसने D1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, बाद में वंस अगेन उसने D2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। D1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने टाइम लिया T1 एंड सेकंड टाइम उसने टाइम लिया T2। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, D1 प्लस D2 एंड टोटल टाइम क्या हुआ, T1 प्लस T2। सो दिस वी आर गेटिंग इज 16 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 2, so 32 upon 6। what is the unit we are getting is मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिया है, यहाँ पे टाइम सेकंड में दिया है। सो दिस वी आर गेटिंग इज द एवरेज स्पीड ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। Okay, so we are getting the average speed of a object. Okay, now let us see the second example. Example 8.2 of your textbook. Okay, so what is the given? The odometer of a car reads
2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of a trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed. क्या दिया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स ए 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 kilometers at the end of a trip, and a trip it takes 8 hours. So what is the average speed? तो यहां पे क्या है, starting reading of odometer is 2000 kilometer, okay, and final reading of odometer is 2400 kilometer, and time taken is equal to 8 hours. ठीक है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, तो यहां पे वो डिस्टेंस ट्रैवल कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या हम कार चलाते तो हम कार में जब भी स्टार्ट करते तब देख लेते हैं कि ओडोमीटर क्या रीडिंग बता रहा है, और जब हमारा जर्नी कंप्लीट होता है तो हम देखते हैं कि ओडोमीटर क्या रीडिंग बता रहा है, और वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, 2400 माइनस 2000, सो वी आर गेटिंग इज 400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार. ओके, सो नाउ we write the formula for the average speed. So average speed is nothing but a total distance upon total time taken. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया, 400 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 8. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 50, एंड यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस वो किलोमीटर में दिया है और टाइम किस में दिया है, आवर में दिया है. सो वी आर गेटिंग एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. ओके, so next example 8.3 of your textbook. Okay, so let us see what is the given in data. Usha swim in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same path. Calculate the average speed and velocity. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है. ठीक है, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम पाथ. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी. यहाँ पे क्या दिया है, एक स्विमिंग पूल दिया हुआ है. स्विमिंग पूल दिया हुआ है. ठीक है, और स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई लेंथ दी हुई है. लेंथ क्या है, 90 मीटर की इनकी लेंथ है. ठीक है, ये 90 मीटर की लेंथ है. उसमें क्या हो रहा है कि यहां पे जो उषा है, ठीक है, ये उषा जो है, सो सी इज ट्रैवल 90 meters. ओके, it goes at one end and come back to same end in the same path. Okay, and time taken is equal to 1 minute. Time taken is what, 1 minute. Okay, so here what we have to calculate, we have to calculate average speed and
वेलोसिटी। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस कितना आएगा, 90 मीटर्स का पुल है तो 90 मीटर्स ऐसे जाती है, वापस 90 मीटर्स वो आएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो गया, 180 मीटर्स हो गया। और टाइम कितना लगाया उसने वो ट्रैवल करने के लिए, 1 मिनट का टाइम लगाया। कितना टाइम लगाया, 1 मिनट का टाइम लगाया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, साथ साथ वेलोसिटी भी फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आगे बताया कि एग्जाम्पल सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, डेटा है उनको नोट डाउन करो। अब सेकंड स्टेप मैंने बताया था, क्या बताया था, इफ यूनिट आर नॉट इन सेम यूनिट सिस्टम देन यू हैव टू कन्वर्ट इन सेम यूनिट सिस्टम। तो आगे के 2 एग्जाम्पल देखा उसमें यूनिट सेम था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में, और टाइम किस में दिया है, मिनट। तो ये मिनट नहीं चलेगा, हमें मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड आएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड आएगा। ठीक है, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल time. So total distance travel over here is 180 meter upon total time taken is 60 seconds. So we are getting is what, 3 meter per second. So what is the average speed of Usha is 3 meter per second we are getting. Okay, now another things we have to find out is the velocity. So how velocity is defined, velocity we are getting is equal to displacement upon time. Displacement upon, तो यहाँ पे displacement क्या है, as per the definition of displacement, the shortest distance between initial and final position. तो यहाँ पे इनिशियली उषा कहाँ पे थी, यहाँ पे, अब फाइनली उषा कहाँ पे है, सेम पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0। So we are getting 0 upon 60. So we are getting is 0. So here our velocity is 0 and average speed is a 3 meter per second. Okay? तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको अभी डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब स्पीड 0 नहीं होती तो वेलोसिटी 0 हो सकती है। ठीक है, so this way we can calculate the numerical. Okay, एक आध और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, ए कार ट्रैवल फर्स्ट 20 किलोमीटर्स विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि एक जो कार है, ठीक है, सो कार इज ट्रैवल फर्स्ट 20 किलोमीटर, फर्स्ट 20 किलोमीटर जो ट्रैवल कर रही है विथ स्पीड ऑफ
40 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और सेकंड टाइम वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इट इज गिवन इज 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड जो निकालना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस वी आर गेटिंग इज इक्वल टू d1 प्लस d2, so this we are getting is 20 plus 40, मतलब we are getting is 60 किलोमीटर, is nothing but a total distance travel। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसमें से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू d बाई t है। तो अगर हमें t निकालना है तो हाउ वी कैन राइट, t इज इक्वल टू d बाई v वी कैन राइट, तो हम टाइम निकाल सकते हैं d बाई v से। तो यहाँ पे हम टाइम t1 निकालते हैं, t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन v1, so d1 अपॉन v1 इज वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 0.5 आवर्स, यहाँ पे जो यूनिट दिया वो आवर्स में दिया हुआ है। सिमिलरली हम t2 निकालेंगे, d2 अपॉन v2, so this we are getting is 40 upon 80, so this also we are getting is 0.5 hours। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें से क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा, तो टोटल टाइम वी आर गेटिंग इज t1 प्लस t2, 0.5 प्लस 0.5, दिस वी आर गेटिंग इज 1 आवर, 1 आवर मिल गया। अब हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, तो वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था ट्रैवल किया हुआ 60, और यहाँ पे हमने टोटल टाइम निकाला 1 आवर्स, तो वी आर गेटिंग इज 60 किलोमीटर पर आवर, सो वी आर गेटिंग इज एवरेज स्पीड। और मैथमेटिकल वे से भी आप डायरेक्टली भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप एवरेज कैसे निकालना वो जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी फॉर फर्स्ट केस और वेलोसिटी स्पीड फॉर द सेकंड केस, दो बार स्पीड दिया, इनका एवरेज स्पीड निकालना है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड, वी आर गेटिंग, ठीक, सो वी आर गेटिंग इज 40 प्लस 80 kilometer per hour, so this way also you can calculate the average speed। okay, so this way we can solve the numerical। okay, so you can do the more practice of numerical at the end of the chapter, we will also do the more practice over here। okay, so for today we are understand the about the speed and velocity। okay, thank you।